Hello everyone, I am Nana Agarwal and I welcome you to my channel all about science. Today our topic is fiber to fabric. First of all, it is very much important to know the meaning of fabric. तो fabric का मतलब होता है the material used to make a piece of cloth. जो भी मटेरियल हमारे कपड़ों को बनाने के लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं फैब्रिक। नाउ आपने देखा होगा कि आपके कपड़े अलग अलग टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। तो व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ क्लॉथ? द वेराइटीज आर कॉटन, सिंथेटिक, वूलन एंड सिल्क। नाउ you take a waste piece of cloth and try to find a loose thread from that piece of cloth और उसको पुल कीजिए। You will find कि आपका जैसे जैसे आप उस थ्रेड को पुल करेंगे वैसे वैसे आपका piece of cloth खत्म होने लगेगा। What is this piece which you are pulling out is called? It is called yarn. It is called yarn. So we can say that our waste piece of fabric or our fabric is made up of yarns that are arranged together. Now, if you take this thin thread which we are calling yarn, अगर आप इस yarn को लें तो yarn में भी आप देखेंगे कि वो भी एक बहुत ही छोटे छोटे महीन महीन पतले पतले बहुत सारे थ्रेड से मिलकर बना होता है। सो दोज थ्रेड्स, दिस होल yarn is made up of still fine threads called fibers. Now let's talk about the types of fibers. So fibers are of two types: natural fibers and synthetic fibers. What are natural fibers? The fibers which are obtained from plants and animals are called natural fibers. For example, cotton and jute, wool and silk. Cotton and jute are obtained from plants. Wool and silk is obtained from animals. Now let's talk about synthetic fibers. So the fibers which are made from chemical substances are called synthetic fibers. For example, polyester, nylon and acrylic. Now we will talk about plant fibers one by one. So first we will talk about cotton. So basically cotton is used in making wicks for oil lamps, filling mattresses, quilts or pillows, and cotton is grown in places where black soil is present and places which are having warm climate. So now we will talk about process of growing cotton. So fruits of cotton plants are called cotton bolls, which are lemon sized. After maturing, the bolls burst open and the seeds which are covered with cotton fibers are seen. तो सबसे पहले हमारा जो कॉटन प्लांट होता है उसके फ्रूट को क्या कहते हैं? कॉटन बोल कहते हैं। कॉटन बोल के अंदर क्या होता है? उसका सीड होता है। जब मैच्योर हो जाती है कॉटन बोल्स तो उसका सीड उसके अंदर से निकल आता है बाहर। फिर उसके सीड में क्या होता है? सीड कवर्ड होता है कॉटन फाइबर से और कॉटन बोल्स में से कॉटन is picked by hands by the process of combing. Fibers are then separated from seeds by combing, and this process of separating the fibers from cotton bolls or the seeds is called giving. Next comes jute. So jute is obtained from stem of jute plant, cultivated during rainy season, grown in West Bengal, Bihar and Assam.
हार्वेस्टेड इन इट्स फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि जूट प्लांट मिलता किससे? ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है हमें जूट। कल्टिवेटेड ड्यूरिंग, किस समय कल्टिवेट किया जाता है? रेनी सीजन के टाइम पे। ग्रोथ कहाँ होती है? कौन सी जगह पर होती है? वेस्ट बंगाल में है, बिहार में है और असम में है जूट की ग्रोथ। जूट कहाँ ग्रो किया जाता है? वेस्ट बंगाल में, असम में और बिहार में। फिर हार्वेस्ट यानी कि इसकी कटाई किस टाइम पे होती है? फ्लावरिंग स्टेज पे, जिस टाइम इसमें फ्लावर आता है उस टाइम पर इसकी कटाई की जाती है। फिर नेक्स्ट कम्स स्टेम्स ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। क्या होता है कि जो स्टेम्स होती हैं हार्वेस्टेड प्लांट की, हमने यहाँ पर हार्वेस्ट कर लिया, इसकी जो स्टेम्स होंगी वो उसको भिगोया जाएगा। किसमें भिगोया जाता है? पानी में, वाटर में भिगोया जाता है कुछ दिनों के लिए। फिर स्टेम्स रॉट, यानी कि जब स्टेम्स सड़ जाती हैं, पानी में डुबो के रखते हैं तो सड़ जाती हैं स्टेम्स सड़ जाती हैं तो फिर रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। तो जब स्टेम्स उसकी सड़ जाती हैं तब उसमें से फाइबर निकाल लिया जाता है हैंड से। ठीक है, ये होता है पूरा प्रोसेस जूट का। तो हमने पहले भी पढ़ा कि टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, और यार्न से ही फिर सारे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। किस प्रोसेस को? मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर्स से हमने यार्न बनाया, अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि फाइबर्स से हमने यार्न बनाया, उसी प्रोसेस को हमने कहा स्पिनिंग। कॉटन के टाइम पर हमने पढ़ा था, प्लांट फाइबर्स में जब हम कॉटन पढ़ रहे थे तब। फिर फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर टेकन आउट एंड ट्विस्टेड, ये भी हमने पढ़ा था कि फाइबर्स फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वूल आर टेकन आउट एंड ट्विस्टेड, देन दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। फिर जो डिवाइस यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, कॉटन के यार्न को बनाने के लिए, उसका नाम होता है टकली या फिर चरखा। चरखा पुराने जमाने में महात्मा गांधी के टाइम पर पॉपुलराइज किया था इसे, चरखे को महात्मा गांधी ने। पुराने जमाने पे महात्मा गांधी के जमाने पर चरखा यूज करते थे, घर में ही उससे कॉटन बनाते थे। और इसको चरखा को पॉपुलराइज किया था महात्मा गांधी ने एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो खादी उसको कहते थे। किसको कहते थे? खादी। जो हम घर में चरखा यूज करके उससे जो कॉटन की वूल यूज करके जो कपड़ा बनाते थे, कॉटन का कपड़ा, उसे कहते थे खादी। क्लोथ मेड अप ऑफ होम स्पन यार्न, उसे कहते थे खादी। तो गवर्नमेंट ने एक बॉडी प्रमोट की थी, खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई थी, उसका नाम दिया था विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956 में। खादी को प्रमोट करने के लिए कि हम लोग वेस्टर्न क्लोथिंग छोड़ के होम मेड यानी कि इंडिया में बने हुए कपड़े, जिसे कहा गया खादी, वो पहने। इसके लिए इन्होंने एक बॉडी बनाई थी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। कब बनाई थी? 1956 में बनाई थी। तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। लार्ज स्केल पे करते हैं स्पिनिंग तो लार्ज मशीन्स यूज करते हैं स्पिनिंग के लिए। फिर आफ्टर स्पिनिंग द यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, और स्पिनिंग करने के बाद में उसको यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। नेक्स्ट कम्स वीविंग। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर इज कॉल्ड वीविंग। दैट मीन्स टू सेट्स ऑफ यार्न। हमने पहले पढ़ा था कि एक यार्न बहुत सारे फाइबर से मिलकर बनता है, फैब्रिक यार्न से मिलकर बना है और यार्न फाइबर्स से मिलकर बने हुए हैं। तो हमने दो सेट ले लिए यहाँ पर यार्न के। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर इज कॉल्ड वीविंग। इसे वीविंग कहते हैं। इट इज डन ऑन लूम्स से होती है ये। इट इज डन ऑन लूम्स, दे आर इधर हैंड ऑपरेटेड। लूम्स इधर हैंड ऑपरेटेड होते हैं, या तो हैंड से ऑपरेट किया जाता है या फिर पावर ऑपरेटेड होते हैं। देन नेक्स्ट कम्स knitting. In this process, a single yarn is used to make a piece of fabric. Single yarn यूज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? knitting, बुनाई, ऊन का काम जिसमें होता है। इसको सॉक्स और स्वेटर बनाए जाते हैं
आपकी दादी नानी ने बनाए होंगे आपके लिए स्वेटर, आप पहनते होंगे उनके हाथ के बनाए स्वेटर्स. So knitting is a process where single yarn is used to make a piece of fabric. Single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. अब अपने सॉक्स का या स्वेटर का एक धागा निकालो, एक वूल निकालो, एक वूल निकालो और देखो सब पूरा का पूरा स्वेटर खुलता चला जाएगा. तो उस प्रोसेस को कहते हैं बुनाई, जिसको कहते हैं, कहते हैं knitting. It is done by hands and also on machines. हाथ से भी आपने देखा होगा अपनी दादी नानी को, मम्मी को बनाते हुए, और मशीन से भी की जाती है. So both weaving and knitting are used to make variety of clothing items. So this is a fact that flax is also a plant that gives natural fibers. Flax भी एक प्लांट है जो हमें क्या देता है, नेचुरल फाइबर्स देता है. फिर हमने क्या पढ़ा चैप्टर में, कॉटन रोल्स. कॉटन के रोल्स के हमने पढ़ा था कॉटन में. कॉटन के रोल्स से हमने फाइबर बना लिया, यार्न नहीं बनाया, फाइबर निकाल लिया डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे फाइबर से मिलकर ही तो यार्न बनता है हमारा. तो हमने कॉटन रोल्स से फाइबर बनाया. वो कौन से प्रोसेस से बनाया, गिनिंग से. और फाइबर से हमने फिर क्या बनाया, यार्न बनाया. यार्न किस प्रोसेस से बनाया हमने, स्पिनिंग से, यानी फाइबर्स को हमने आपस में जोड़ा, उससे हमने एक यार्न बनाया. अब इस यार्न को हमने फिर फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट किया था, निटिंग करके और वीविंग करके हमने फैब्रिक बना दी. फिर हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, उसकी समरी है. वैरायटी ऑफ फैब्रिक अवेलेबल है ना, बहुत सारे वैरायटी है, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, नायलॉन और पॉलिएस्टर. फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल में आता है हमारा कॉटन, सिल्क, जूट, है ना, और सिंथेटिक में आता है हमारा नायलॉन और पॉलिएस्टर. फिर हमने क्या पढ़ा कि कॉटन और जूट हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ये भी हमने पढ़ा था. और प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स. यार्न फाइबर से बना, उसको क्या प्रोसेस कही हमने, स्पिनिंग कही थी. और फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग. वही फैब्रिक हमने यार्न से बनाया, वीविंग और निटिंग से. तो ये हमने पढ़ा पूरा इस चैप्टर में. सो दिस वाज फॉर टुडे. नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. If you have any query regarding this topic, you can ask me in the comment section below. If you like the video, then press the like button and share to your friends and family members. And don't forget to subscribe the channel. Thank you.